Last class we discussed question paper of 2019. In today's class, we are going to understand one question, that is what are the various steps for choosing the target market segmentation. ठीक है, what is the meaning of market segmentation? I guess सबको पता है what is the meaning of market segmentation. सबको पता है what is the meaning of market segmentation क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So segmentation is a process of basically creating a small segment of the broad market, segmenting out according to different needs and demand of the customers, heterogeneous to homogeneous. Okay. So now what are the various steps for market segmentation? How we can segment the market? What are the various steps for that? So the first step is to identify the target market. Everyone turn on your camera. सारे लोग कैमरा टर्न ऑन कीजिए. हाँ. So the first step in the market segmentation is like identify the target market, that whom you are going to sell the product, who are your potential customer. So for that you have to identify the target market. Marketers जो हैं वो must be clear about that who are their मतलब whom they are selling the product. अगर demographic अगर हम देख रहे हैं तो in that if we are thinking about gender, so we are selling the product to male people or the female one, right? So here we have to ensure that who is our target market. मतलब target market कौन है, target segment कौन है, potential customer कौन है. Example में अगर हम देखें तो like segmentation जो है it is helpful for making the marketing strategy as well as the promotional scheme. अगर हम देखें कुछ products का example लें, so like Burberry, that is a apparel का एक brand है, कपड़ों का एक brand है Burberry. So they are segmenting the both मतलब both section, male and female के लिए जो clothes दिखा रहे हैं या फिर sale करते हैं वो बिल्कुल separate है. एक और एग्जाम्पल है दैट ऑब्वियसली अगर कोई गार्नियर का मान लो डिओड्रेंट है दैट इज फॉर मेल, so we cannot show the female in that particular advertisement. In short, what we can say that whom we are targeting, according to that we are going to make the marketing strategy as well as promotional जो होगा वो. जैसे एग्जाम्पल में मैगी is something that is for children. अगर वो children के लिए तो whom they are going to show, they are going to show the children, they are focusing on children. Nowadays the Cadbury, earlier that was made for the children, but now it is for everyone, for old people as well. They are promoting the brand like this that the मतलब हर एक कोई बोलते हैं ना बच्चे होते हैं दिल से, हर एक कोई बच्चे होते हैं, like this kind of aim they have. So they are targeting everyone, so they are showing every people like old age couples या फिर teenagers. So we can say that द टारगेटिंग मार्केट में आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बहुत बेटर तरीके से बना सकते हो, प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो, प्रमोशनल स्कीम को अच्छे से बेसिकली दिखा सकते हो, प्रमोशनल स्कीम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर द फर्स्ट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट. द फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया सबको? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ लिखना चाहते हो? फर्स्ट पॉइंट में कुछ लिखना है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन. और एक और चीज अगर मैं इसमें बताऊं, जैसे कि एक तो मैंने ले लिया जेंडर का एग्जांपल, ठीक है, एक एज ग्रुप का एग्जांपल ले लिया, जैसे बच्चों के लिए मैगी एंड ऑल, चॉकलेट्स एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं. अब अगर हम इनकम, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डेमोग्राफिक, तो अब जैसे कि हम देखेंगे कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए कौन सा कार वो ज्यादा खरीदते हैं, दे आर परचेजिंग अल्टो, ठीक है, अल्टो या फिर कोई सस्ता कार दे आर परचेजिंग. मिडिल इनकम ग्रुप वाले क्या खरीदेंगे? वैगनार, स्विफ्ट एंड ऑल. हाई इनकम वाले क्या खरीदेंगे, या फिर एक्सट्रीम रिच वाले क्या खरीदेंगे? ऑडी. सो लाइक हर एक प्रोडक्ट के लिए अपना अलग अलग टारगेट कंज्यूमर होता है, टारगेट मार्केट होता है. So we have to make the, basically we can use the promotional schemes and strategies, planning, way of presentation या way of selling the product, वो according to that होगा, ठीक है. सर्विस सेक्टर में भी the same thing will be there कि like according to different various and different demand group we are going to target, मतलब we are going to target the market and we are going to provide the service. The next point is like for example if the schools के लिए अगर हम प्रमोशन करते हैं या schools के लिए प्रमोशन करेंगे तो कैसा शो करेंगे? ज्यादातर हम बच्चों को, चिल्ड्रन को दिखाएंगे, बिकॉज स्कूल में कौन होते हैं? बच्चे ही आते हैं पढ़ने के लिए, राइट? सो आवर टारगेट कंज्यूमर्स आर स्टूडेंट्स. तो वही सेम चीज जो है ये फर्स्ट वाले पॉइंट में आएगा, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट. द सेकंड स्टेप,
Turn on your camera. Everyone, turn on your camera. Okay. Next one. Next step. Identify expectation of the target audience. Identify expectation of the target audience. Identify expectation of the target audience. Once the target market is identified, एक बार target market identify हो गया, then it is essential to find out that what is the need of the target customers. Whatever product we are going to offer, they are going to purchase it or not, they are going to consume the service or not. So first of all, when we understand that this product is for basically for children, then now we have to understand that what kind of expectation they have for your product, for the companies, for the different other companies and product services. So now in this second step में हमें expectations देखना है किसका, consumer का, target market, target customer का, ठीक है. अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि केलॉग्स जो है, केलॉग्स पता है क्या होता है? केलॉग्स क्या है? केलॉग्स व्हाट इज केलॉग्स मैम? कौन कह सकते हैं कि मतलब दैट इज लॉन्च स्पेसिफिकली टू वांटेड, मतलब इसका मेन क्या था फोकस, जैसे केलॉग्स हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, ये सब जैसे जूनियर हॉर्लिक्स है, दैट इज शोइंग दैट अगर ये बच्चे कंज्यूम करते हैं तो दैट इज बेटर फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, राइट. किसी किसी चीज में कैलोरीज कम है, तो लाइक आजकल के जो लोग हैं दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस, तो कैलोरीज कम होने चाहिए. So in short, we have to identify that what kind of expectation the target customer have for your brand. ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट उनके हेल्थ पे इफेक्ट तो नहीं डाल रहे हैं, so all these kinds of question can be raised in this step, that we have to identify it. And how we can identify it? By doing the very survey and all, we can take the feedback, we can take the data of the other companies as well. So the same thing will be happen in this step. Identify the expectation of the target. ठीक है. Next one is, मैम इसका एग्जांपल एक बार फिर से बता दीजिए. so second step में मतलब कि you have to identify what is the need of the customer. Like what I am saying that अगर अभी कोई प्रोडक्ट्स आता है, जैसे केलॉग्स आया, तो केलॉग्स इज फॉर चिल्ड्रन, उसमें कैलोरी थोड़ा कम होता है, ठीक है. जूनियर हॉर्लिक्स आया, दैट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, माइंड शार्प करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, राइट. So what we can say, like nowadays the people are very much conscious toward consuming the product and services. So for providing any goods or services, we just need to analyze the whole market, that whom we are targeting, they are going to purchase our product or not, and we are able to make the product according to their expectation or not. So in this stage we are going to do the survey, we are going to understand the consumer, that whom we are targeting, they are purchasing our product or not, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे प्रोडक्ट. तो जैसे अभी मैंने बताया कि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हैं, तो कभी भी कोई प्रोडक्ट आता है तो कैलोरी उसमें कम रहता है, क्योंकि लोग कैलोरी कम कंज्यूम करें, ठीक है. जूनियर हॉर्लिक्स बच्चों के लिए, बच्चों पे टारगेट करें, हमारे टारगेट कस्टमर बच्चे हैं, तो उनमें हम क्या शो कर सकते हैं, उनमें हम ऐसा कुछ चॉकलेट फ्लेवर लेकर आते हैं ताकि बच्चों को चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट फ्लेवर का बेसिकली हॉर्लिक्स हो, ठीक है. या फिर जो हॉर्लिक्स है उसमें मतलब कह सकते हैं कि सारे न्यूट्रिशंस, वो सारी चीजें हो जो बच्चे अगर घर का खाना नहीं भी खाते हैं तो भी वो फुलफिल हो जाए. तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कंज्यूमर, वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर नीड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सर्व द सर्विसेज, वी हैव टू गिव द सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट. क्लियर हो गया तोशी? समझ में आया एवरीवन? सबको क्लियर है? यस मैम. ठीक है. Next one is to create the subgroups. Next one is to create the subgroups. Create the subgroups. यानी एक ग्रुप के अंडर में एक ग्रुप बनाना, कह सकते हैं इसको कि the organization should ensure the target market is well defined. यानी जो उनका टारगेट मार्केट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. उसके विदिन ही हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सब ग्रुप्स विद द इफेक्टिव रिजल्ट. एग्जाम्पल में देखिएगा कि कॉस्मेटिक्स फॉर फीमेल, मतलब जो कॉस्मेटिक्स फीमेल के लिए जो आते हैं वो बहुत सारे कैटेगरीज में आते हैं. लाइक जैसे अगर हम सिर्फ फीमेल पे फोकस कर रहे हैं तो नाउ इसमें एज बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो लाइक कुछ क्रीम जो होंगे वो 20 to 25 इयर्स के लिए आएंगे, कुछ जो होंगे दैट इज अबव 25 के लिए, कुछ होंगे जो 35 प्लस के लिए आएंगे. So what we can do, like after determining that who is, मतलब टारगेट मार्केट डिटरमाइन कर लिया,
उनका क्या नीड है उसको समझ लिया। अब तीसरा जो है उनके नीड के हिसाब से हम उसमें सब ग्रुप्स बनाएंगे। जैसे 20 साल से 25 साल की जो लेडीज है दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर क्रीम, 25 से 30 साल में ये, 30 प्लस के लिए, 40 प्लस के लिए, लाइक दिस। क्लियर हो गई बात समझ में कि वी हैव टू मेक द ग्रुप विद इन द ग्रुप, यानी ग्रुप के अंडर में भी वी कैन मेक द ग्रुप्स, राइट। सो दिस इज द थर्ड स्टेप, क्रिएट द सब ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स के अंडर में वी कैन मेक द ग्रुप। क्लियर है ना। अब जैसे कि होता है ना कि हॉर्लिक्स है, तो हॉर्लिक्स क्या हो सकता है, हॉर्लिक्स कैन बी द, उसमें क्या होगा आपका, उसके अंडर में भी सब ग्रुप्स है ना। हॉर्लिक्स जो है दैट इज ईटिंग, उसमें भी सब ग्रुप्स है कि जैसे चिल्ड्रन के लिए अलग, विमेन के लिए अलग, मदर हॉर्लिक्स इज अलग, ठीक है। और उसके भी अंडर सब ग्रुप्स है कि चिल्ड्रन में भी उसमें अलग अलग फ्लेवर्स अवेलेबल है, लाइक चॉकलेट फ्लेवर, नॉर्मल फ्लेवर एंड ऑल। So we can say that we can make the subgroups of the product according, we have to target, like female में भी जो अलग अलग subgroups है according to age, ठीक है। So we have to target it. चिल्ड्रन में भी कुछ ऐसे हैं जिनको चॉकलेट हॉर्लिक्स पसंद होगा, किसी को नॉर्मल हॉर्लिक्स पसंद होगा, तो वी हैव टू मेक द सब ग्रुप्स लाइक दिस। सो विद इन द ग्रुप वी हैव टू मेक द ग्रुप्स। दिस इज द थर्ड स्टेप। क्लियर हुआ, समझ में आया एवरीवन? Yes, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। थर्ड वाला हो गया क्रिएट सब ग्रुप, एंड नाउ द फोर्थ वन इज रिव्यू द नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस। रिव्यू द नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस। Review the needs of the target audience. Review the needs of the target audience. अब यहाँ पर मार्केटर्स क्या करेंगे, what marketers are going to do? बेसिकली मार्केटर्स जो हैं वो एनालाइज करेंगे कस्टमर्स के नीड को, प्रेफरेंसेस को, इंडिविजुअल्स के, ठीक है। हर एक सेगमेंट में, सब सेगमेंट में जो भी कंज्यूमर किस तरीके से कंज्यूमर मार्केट में प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्ड करता है, फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट जो है अभी कस्टमर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, यानी कि कस्टमर जो है वो कौन सी कंपनी को प्रेफरेंस दे रहा है, कितना लॉयल है कस्टमर्स, ठीक है, उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, स्विच करने की पॉसिबिलिटी कितना है, डिमांड फ्लक्चुएशन कितना है। सो ऑल दीज, ये सारी चीजों को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, बाय रिव्यूइंग द नीड ऑफ द टारगेट ऑडियंस। नाउ द वी आर गोइंग टू, मतलब कंपनी इज नाउ गोइंग टू फोकस ऑन द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। अब ये तो हो गया फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप्स में लिखिए नेम योर मार्केट सेगमेंट। नेम योर मार्केट सेगमेंट। नेम योर मार्केट सेगमेंट। अब आपने जो सेगमेंट बनाया है उसका आप नाम रख दीजिए, जैसे किड सेगमेंट, फीमेल सेगमेंट, मेल सेगमेंट। नाउ यू हैव टू गिव द नेम फॉर योर मार्केट सेगमेंट, ठीक है। अगर आपने एक सेगमेंट चूज किया है तो भी ठीक है, अगर आपने 2-3 सेगमेंट को चूज किया है तो भी ठीक है, ठीक है। सेगमेंट का मतलब सबको समझ में आता है ना, जैसे ये मार्केट है और ये हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नीड एंड प्रेफरेंसेस। सो दिस कैन बी द फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। सो द कंपनी व्हाट दे कैन डू, दे कैन चूज आइदर वन सेगमेंट, एक सेगमेंट चूज करेगा, या तो वो दो सेगमेंट चूज कर लेगा। So now it's totally up to the marketers at whom they are targeting. अगर उनके सेगमेंट एक से ज्यादा है तो अब वो उसका नाम दे देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि वैसे ही वो क्या करेंगे, सेगमेंट्स का नाम दे देंगे, ठीक है। किड सेक्शन है अगर, तो किड सेक्शन में जैसे अपना किड सेक्शन है, एक अलग नाम दे दिया उन्होंने। अब उसके अंडर में भी अगर वो चाहें तो जैसे न्यू बॉर्न, इन्फैंट, टॉडलर्स, कुछ भी इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं वो। तो लाइक वी हैव टू गिव द नेम फॉर द बेसिकली सेगमेंट्स को नाम देना है। तो दिस वन इज द फिफ्थ स्टेप। सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सिक्स्थ वन इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सिक्स्थ वन इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सिक्स्थ वन इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में क्या करना है, लाइक वी हैव टू मेक द स्ट्रैटेजी फॉर प्रमोटिंग द ब्रांड। हर एक सेगमेंट को मतलब हम अपने हिसाब से प्रमोट करेंगे, लेकिन ये देख लेना है कि हम जो हर एक सेगमेंट है उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, लाइक अगर मतलब कह सकते हैं कि मतलब अफोर्ड कितना कर सकते हैं और आप प्रमोशन का अमाउंट कितना अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब दोनों चीज देखना है कि आप कितना खर्च करो प्रमोशन पे, ठीक है। द पीपल, हाउ पीपल आर गोइंग टू अफोर्ड और नॉट, मतलब इफ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन अर्बन एरियाज मे बी दे कैन एबल टू अफोर्ड, बट इन द रूरल एरियाज दे कैन नॉट, राइट। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट कि whatever promotion strategy you are using that should be affordable, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट है वो टारगेट ऑडियंस तक पॉजिटिव इम्पैक्ट
असर छोड़ना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई एडवर्टीजमेंट हो रहा है दैट इज रिलेटेड विद द फीमेल टॉयलेटरीज, ठीक है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू एंटर द मेल इन दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट व्हिच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, राइट। अब कोई सनस्क्रीन मतलब लोशन का कोई कर रहा है तो यू हैव टू शो द लाइक सूरज एंड ऑल, मतलब सूरज नॉट सूरज, इन शॉर्ट मतलब स्टेबल विद द पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। बस यही कहना है कि मार्केट स्ट्रैटेजी समथिंग रिलेटेड विद द प्लानिंग, promotion, product decision, each and everything related with the marketing activities. So we have to make the marketing activities according to the overall segmentation whatever we did. So यहाँ पर marketing strategy basically हमने determine कर लिया. Now once you are basically एक बार आपने market strategy बना लिया, now you have to review the behavior of the consumers. मतलब target audience की जो behavior है we have to review it again and again, ठीक है, कि व्हाट इज द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट, इसके लिए रिव्यू करना, परसेप्शन चेंज हो रहा है, कस्टमर का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, वी हैव टू रिव्यू द बिहेवियर एंड वंस द बिहेवियर इज रिव्यूड देन वी हैव टू बेसिकली फोकस ऑन द साइज ऑफ द टारगेट मार्केट, यानी मतलब जो 8th स्टेप होगा दैट इज वी हैव टू नो, इसेंशियल टू नो द टारगेट मार्केट साइज, मतलब टारगेट मार्केट साइज क्या है वो आपको एक बार में पता लग जाएगा, व्हाट इज योर टारगेट मार्केट साइज, दैट इज बिग, स्मॉल, और दैट इज इन अ पर्टिकुलर रीजन, एरिया. So finally, after when the size of the target market is determined, then you can able to sell the planning and forecasting the product. So in short, for segmenting the market, what we have to think, like अगर steps याद नहीं हुआ तो कैसे इसको याद करोगे? How we can learn this? How we can learn? So first of all याद रखिएगा कि टारगेट ऑडियंस कौन है उनको डिटरमाइन करना, टारगेट ऑडियंस के परसेप्शंस क्या है, एटीट्यूड क्या है, थिंकिंग क्या है, ठीक है, एक सर्वे करना, कौन से जिस सेगमेंट पे आप प्रेफर कर रहे हो उस सेगमेंट का एक पर्टिकुलर नाम देना, सब ग्रुप्स बनाना, यानी एक ग्रुप के भी अंडर में कुछ सब ग्रुप्स वगैरह जो है वो क्लियर करो, ठीक है। फाइनली उसके बाद कस्टमर्स के लिए कुछ मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बाद फाइनली जो है आपका जो मार्केट साइज है दैट कैन बी डिटरमाइंड एंड फाइनली you will start forecasting and producing the product, selling the product, you can do that. So this is the way of segmentation या steps for market segmentation. समझ आया? क्लियर हुआ? मैम लास्ट कितना करना है? देखो इसको मैं एक बार ऐसे नॉर्मली फिर से एक बार समझा देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा शायद आप लोग को दिक्कत हुआ होगा. टारगेट मार्केट डिटरमाइन कर लिया, मान लो कि ये पूरा एरिया जो है ये मेरा टारगेट मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये टारगेट मार्केट है, डिटरमाइन कर लिया. अब यहाँ पर यहाँ के जो आपके ऑडियंस होंगे इनका एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैंने देख लिया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन समझ आ गया. अब यहाँ पर इसी के अंडर में मान लीजिए कि मैं इसमें भी सब ग्रुप्स वगैरह बनाऊंगी, सब ग्रुप्स जो भी होंगे ग्रुप्स के अंडर में जो ग्रुप्स बनेंगे वो हो गया. उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रिव्यू करूंगी टारगेट का, मतलब इन शॉर्ट ये एक रिपीटेटिव वे है, मतलब रिव्यू करना मतलब जो टारगेट ऑडियंस का नीड क्या है, तो एक काम यहाँ पर बेसिकली सर्वे करेंगे, फिर सर्वे करने के बाद मार्केट सेगमेंट का नाम दे देंगे और फिर मार्केट सेगमेंट के बाद फाइनली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जैसे प्रोडक्शन कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करना है. लेकिन ये याद रखिएगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रिलेटेड विद द प्लानिंग एंड प्रमोशन. अब यहाँ पर फाइनली आपका प्रोडक्ट कितना सेल हो सकता है ये सबसे लास्ट का स्टेप है, दैट इज यहाँ पर सेल फॉरकास्टिंग करेंगे. सेल फॉरकास्टिंग, कितना प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर सेल होगा, यानी कि टारगेट मार्केट मेरा जो होगा उसका साइज क्या होना चाहिए, टारगेट मार्केट का मेरा जो है साइज क्या होगा, ये सबसे लास्ट स्टेप है एनालाइज करने का. क्लियर हुआ ये? तोशी, शुभांगी एंड एवरीवन? यस मैम. यस मैम. ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग प्लीज ओके. सो एवरीवन ये देखिए सब स्क्रीन पर. So the first question is that what is service marketing? Basic question है, सबको आता होगा. Service marketing is a marketing of, मतलब पता नहीं क्यों लिखा है marketing of services. यहाँ पे promotion होता है, economic activities है, process है, और सारी चीज क्या है, intangible है. और इसके example, हमेशा example जरूर लिखना marketing के पेपर में. example नहीं, marks मैं नहीं दूंगी, marks नहीं दूंगी, example नहीं होगा.
ठीक है. So telecommunication services, financial services, professional services, entertainment services, healthcare services. टेलीकम्युनिकेशन में टेलीफोन, इंटरनेट, फाइनेंशियल सर्विसेज में रिलेटेड विद द बैंकिंग एंड ऑल, प्रोफेशनल सर्विसेज, डॉक्टर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, टीवी, फिर अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह, फिर आपका सिनेमा हॉल, हेल्थ केयर सर्विस में वही हॉस्पिटल. So it is basically the service marketing is the specialized branches of marketing where the specialized service is served by so many professionals. कौन-कौन professionals हो सकते हैं? वही teachers, मतलब advocate, lawyers, फिर आपके क्या बोल सकते हैं, doctors, ठीक है, auditors. Next, name the types of services. The first question is clear. First question is clear. Second question, Yes. name the types of services. नेम द टाइप्स ऑफ सर्विसेज. तो यहाँ पर दो तरीके से सर्विस दिया हुआ है. एक तो है कोर सर्विस जिसको हम प्योर सर्विस भी कहते हैं. कोर सर्विस है उसको हम प्योर सर्विस भी कहेंगे. कोर सर्विस का मतलब ये है कि जिसका पूरा का पूरा प्राइमरी ट्रांजैक्शन जो है वो आपके सर्विस पे डिपेंडेंट है, ना कि कोई प्रोडक्ट पे. ठीक है, द होल जो प्राइमरी ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो पूरा का पूरा प्योर सर्विस है. जैसे टीचिंग जो है इसमें बुक्स कैन बी अवेलेबल, right, laptops can be available, but still the core function of the educational institute is to provide the education teaching. So core services वही होगा जिसको हम pure service भी कहते हैं. लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो आपके पीजीडीएम में क्वेश्चन आया था कि प्योर सर्विस जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आंसर तब भी लेकिन नो लिखना. ठीक है, आंसर नो होता है, कभी कोई प्योर सर्विस नहीं होता है. बट यहाँ पर कोर सर्विस का मतलब यही कि जिसमें प्राइमरी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपका सर्विस ही है, यानी ओवर और फाइनली जो है वो आपको सर्विस ही प्रोवाइड किया जा रहा है. ठीक है, जैसे एग्जांपल में टीचर हो गया, हेयर स्टाइलिस्ट हो गया, ठीक है, डॉक्टर्स भी हो गए, सब ये सब आएगा. सप्लीमेंट्री सर्विसेज में जहां पर आपको सर्विसेज एडिशनल में मिलता है विद द टैंजिबल प्रोडक्ट, यानी टैंजिबल प्रोडक्ट के साथ आपको सर्विस है ना एडिशन में साथ में मिलेगा. जैसे कि वही मैंने बताया था, कार के साथ उनकी वॉशिंग, मतलब सर्विस क्या है, वॉश करना कार को, सर्विसिंग कराना कार को. तो दैट इज द सप्लीमेंट्री सर्विसेज. कोर सर्विसेज जिसका पूरा का पूरा सर्विस ही आपका प्रोडक्ट है, सर्विस ही कोर में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्विस ही आपको मिल रहा है. सप्लीमेंट्री सर्विस जो टैंजिबल गुड्स के साथ सर्विस मिल रहा है, सप्लीमेंट्री सर्विसेज. वर्ड अलग है लेकिन मैंने करवा रखा है, वही मीनिंग है, समझ रहे हो ना. वर्ड अलग है लेकिन मीनिंग सेम है. कोर प्योर सर्विस, सप्लीमेंट्री सर्विसेज, एडिशन विद द टैंजिबल गुड्स. यस तोशी? मैम हम लोग अपना वही 5 लिखेंगे, वो नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा, लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया कि इस तरीके से कभी आता है ना कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज, तो जो मैंने क्लासिफिकेशन वगैरह जो बताया था वैसे ही लिख लें. ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सर्विस इंडस्ट्री, जो मैंने पहले भी कराया है, बट इसके आंसर्स देख लो कि लाइक क्या क्या हो सकता है. सेटिंग द प्राइस, बिकॉज जो सर्विस होता है उसमें हमें कुछ गुड्स नहीं दे रहे होते हैं, तो इट इज वेरी मच बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि वर्थ जो है वो सर्विस को कंज्यूमर समझेंगे कि नहीं. ट्रस्ट के साथ साथ उसका वर्थ भी इंक्रीज होता है, ट्रस्ट के साथ सर्विस का वर्थ इंक्रीज होता है. ठीक है. अब यहाँ पर डिफिकल्टी है सेटिंग करने में प्राइस. द फर्स्ट थिंग, बिकॉज बिफोर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ सर्विस यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कॉस्ट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड, मतलब आपने कितना पैसा सर्विस में लगा रहे हो आप. ठीक है, तो इट इज अ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर सेट द राइट प्राइस बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया. लाइक प्रोडक्ट में मटेरियल, रॉ मटेरियल, ये सब तो हमें बहुत जल्दी वी कैन कैलकुलेट, बट इन द केस ऑफ सर्विस इट इज डिफिकल्ट टू सेट द प्राइस, राइट. The next one is the lack of passion among the staff, yani ki in order to generate more revenue you have to make the staff little bit passionate. And one more thing is the challenge that the service sector is highly dependent on people. Service sector is highly dependent on people. That's why कई बार क्या होता है, रेवेन्यू जो है अगर आपके साथ कभी किसी ने बुरा बिहेव कर लिया, किसी भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने, तो you will start basically doing the negative mouth publicity, right? So what we can say that because the customer perception is different as well as the customer executive are also people, so sometimes their way of maintaining, managing the query is not right.
So we can say that this is also the major या big challenge for the company to work with the people efficiently. मतलब लोगों से ही आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो इन शॉर्ट. नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग न्यू सर्विस. न्यू सर्विस को क्योंकि इंटैंजिबल है तो लाइक प्रोडक्ट की तरह वी कैन चेक इट्स ड्यूरेबिलिटी, राइट. जैसे कभी कोई मतलब नया अगर एसी का मॉडल बनता है तो वी कैन चेक इट इजिली दैट हाउ इट इज वर्किंग, कूलिंग कितनी देर तक दे रहा है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, वी कैन चेक इट. बट इन द केस ऑफ द सर्विसेज इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू टेस्ट दैट द प्रेजेंट सर्विस क्वालिटी इज गुड और नॉट. यानी पहला जो अभी प्रेजेंट में सर्विस क्वालिटी हम दे रहे हैं दैट इज गुड और नॉट. अगर हमें अभी प्रेजेंट जो सर्विस है उसी की क्वालिटी में इफ वी आर इन डायलेमा वी कैन नॉट इम्प्रूव इट. सो इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज, चेकिंग द क्वालिटी इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज. क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन एवरीवन नेक्स्ट वन टेस्टिंग द न्यू सर्विस. क्वालिटी समझना, स्टैंडर्डाइज फिक्स करना, स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि क्वालिटी से रिलेटेड है एंड हर एक एरिया में सेम क्वालिटी. जैसे होता है प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इज दिस, मैगी इज द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, गुड डे बिस्किट इज द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट. व्हाई? बिकॉज वी विल गेट द सेम क्वालिटी when we are purchasing it from the other area as well. So the quality is not changing according to the changing in area. Some that is known as standardization. So standardize करना सर्विस को, क्योंकि पर्सन पे डिपेंडेंट है, it is very much difficult to standardize the service. It can be the lower according to expectation, it can be low, and according to expectation it can be high. ठीक है? So the variability is there. So we can say that the standardization or putting some, we can make the policies, we can do one thing that we can make the policy, but like product we cannot do the standardization work. The next question, uncertainty is there, intangible hai, so we cannot, they can't experience a service before buying it. So we can say that before purchasing, like we can influence the customer toward the product by providing the quality, like this marker is very good, it is waterproof and something, we can show it, we can demonstrate it, but we cannot demonstrate the service as whole. We cannot show that this doctor is checking very good, तो है ना, बहुत अच्छे से check कर रहा है patient को, we cannot demonstrate this, we cannot show this. We can always use the tangible things for even service, but जो service sector होता है उसका ज्यादातर काम core service provide करने का होता है, so we cannot demonstrate the core services. ठीक है? एक्सपीरियंस जब तक कस्टमर खुद नहीं करता तब तक प्रोडक्ट को या सर्विस को शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना प्रोडक्ट सर्विस को, इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर द कंपनी. सो दीज आर द बेसिकली challenges. Demand and supply, like as demand increases the supply of product can be also be increased, but this cannot be done in the service industry because we cannot store the service, right. सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते कि चलो आज 20 कस्टमर आया तो 20 प्रोडक्ट सेल हुआ तो बाकी के 30 प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट डे सेल हो जाएंगे. प्रोडक्ट में दैट कैन बी पॉसिबल, बट दैट कैन नॉट बी पॉसिबल विद द सर्विसेज. पेटेंट राइट, पेटेंट राइट की पॉसिबिलिटी सर्विस में बहुत कम है, लेकिन प्रोडक्ट में पॉसिबल बिल्कुल है. प्रोडक्ट में जैसे कोई भी अगर आप एफएमसीजी कंपनीज ले लो या फिर नॉर्मली कोई और भी प्रोडक्ट ले लो, मशीनरीज ले लो, वहां पर पेटेंट राइट की सुविधा होगी, बट सर्विस को आप पेटेंट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट पेटेंट द सर्विस, बट वी कैन मेक द लिमिट्स बना सकते हैं सर्विस के लिए, बट पेटेंट नहीं कर सकते कि ये सर्विस कोई और यूज नहीं करेगा. वी कैन नॉट पेटेंट द सर्विस, बट वी कैन पेटेंट द प्रोडक्ट्स. क्लियर हो गया? पेटेंट इज समथिंग दैट इज लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड गुड्स पे पेटेंट 20 साल के लिए होता है, 20 इयर्स के लिए पेटेंट राइट इज देयर. ट्रस्ट फैक्टर, ऑब्वियसली द ट्रस्ट इज द बिगेस्ट एंड द फेथ इज द बिगेस्ट थिंग इन द सर्विस सेक्टर. इसका सबसे ज्यादा रोल होता है. तो अगर ट्रस्ट बिल्ड आप नहीं कर पाओगे क्लाइंट के लिए तो यू कैन नॉट बेसिकली आप उस कस्टमर को, लॉयल कस्टमर तक क्या मतलब रिपीट के लिए भी आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. So trust factor is there. What are the 7 P's of the service marketing mix? क्या 7 P's है? The product, place, promotion, price, people, process, physical evidence. I don't think so we need to elaborate it.
Characteristics of feature of services, we all already know. What are the characteristics? How we can differentiate the product and a service, goods and service को किस तरीके से हम differentiate कर सकते हैं? अच्छा, क्या हो सकता है? Product, goods and service के difference कौन बताएगा मुझे? Yes, Toshi. मैम कस्टमर पार्टिसिपेशन सर्विस में हाई होता है और प्रोडक्ट में लो होता है। मतलब सर्विस में ज्यादा कस्टमर पार्टिसिपेट कर सकते हैं पर गुड का नहीं होता है। फिर हेट्रोजीनियस जो है वो मतलब सर्विस ज्यादा होता है, मतलब सर्विस में ज्यादा वेरिएबिलिटी होता है जैसा कैरेक्टरिस्टिक भी है उसका, और प्रोडक्ट में नहीं होता है। फिर इंटैंजिबिलिटी में इंटैंजिबल है सर्विस और टैंजिबल है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ओनरशिप के केस में सर्विस का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है पर प्रोडक्ट का ओनरशिप ट्रांसफर किया जा सकता है। और स्टोरेज भी सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते पर प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। वेरी गुड। नाउ एग्जाम्पल ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री, इसको देख लीजिए एक बार। हॉस्पिटैलिटी सर्विस में होटल्स, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस करा रही हूँ कि कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो याद रहे आपको चीजें, ठीक है? ये सारी चीजें देख लो। हॉस्पिटैलिटी सर्विस में क्या होता है बेसिकली, जहां पर हम कह सकते हैं ग्रीटिंग की जहां पर सुविधा मिलती है। हॉस्पिटैलिटी इज समथिंग जो बोल सकते हैं कि जहां पर आप कैसे कंज्यूमर को डील करो, कैसे आप रिप्रेजेंट करो खुद को, कैसे ग्रीट करो कस्टमर को, तो दैट इज हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ पर होटल्स, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, प्रोफेशनल में अकाउंटिंग, लीगल, एजुकेशनल में स्कूल्स, कॉलेजेस, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल, डेंटिस्ट्री, आई केयर, फाइनेंशियल में बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल इंडस्ट्री में एयरलाइंस, रेलवेज एंड अदर सर्विस, बहुत सारे हो गए, प्लम्बिंग, गार्डनिंग, काउंसलिंग, पेस्ट कंट्रोल। एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग? सर्विस मार्केटिंग की क्या क्या प्रिंसिपल है, ठीक है? When a product does not work as expected, we know it has failed. Obviously, अगर कोई प्रोडक्ट जो है, अगर हम जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन के साथ उसको लेते हैं, परचेज करते हैं, if it's not work, then that can be failed. So how you will determine the failure of service? मतलब कैसे failure of service को आप determine कर सकते हैं? तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। फोकस ऑन सर्विस, जो पहला रूल है सर्विस का कि आप फोकस सर्विस पे कीजिए, यानी कि कंपनीज जो है वो बाकी एक्टिविटीज पे फोकस करता है बट सर्विस पे नहीं करता है, तो इसकी वजह से वी कैन से दैट वी कैन नॉट इंक्रीज द सेल्स ऑफ गुड इवन। इफ यू आर सेलिंग द गुड्स, यू हैव टू प्रोवाइड द एडिशनल सर्विस विद दैट, ठीक है? और सर्विस जो है मतलब क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड कीजिए, रियलिटी को फेस कीजिए, यानी कि जो सर्विस जो भी क्वालिटी ऑफ सर्विस होगा, जो मतलब इट अज्यूम टू बी गुड, फेस द रियलिटी दैट सर्विस इज बैड। मतलब अगर कुछ सर्विस गलत है, सर्विस गलत होगा तो वहां पर वेटिंग लाइन होगा, सर्विस गलत होगा कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा, सर्विस अगर इंप्रूव नहीं होगा तो आपके कस्टमर्स जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स विल बी डिक्रीज। So what we have to do, like we have to face the reality that if the consequences are in the negative way, company को negatively affect कर रहा है, so we have to face the reality, we have to improve the quality of the service as soon as possible. Use additional technologies को add कीजिए अपनी सर्विस में, ठीक है? efficient बनाइए सर्विस को, वेटिंग लाइन डिक्रीज कीजिए, कस्टमर को इंक्रीज कीजिए, कस्टमर सर्वे, फीडबैक, ये सब मतलब अच्छे सर्विस की मतलब ये आप कर सकते हो अच्छी सर्विस के लिए। बिल्ड रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, यानी कि क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट आया था ना, रिलेशन सीआरएम पे काम कीजिए। और सर्विस को सेल करने के लिए हमेशा याद रखिए कि क्लाइंट विल ऑब्वियसली तभी कंज्यूम करेगा आपके यहाँ से सर्विस जब उसको आप पे फेथ होगा। सो ट्राई टू डेवलप द फेथ, ट्राई टू डेवलप द ट्रस्ट इन द माइंड ऑफ योर कस्टमर। Next one is innovation. Like obviously you have to make something better, improve, so you have to be innovative. Customer जो है उन पे आप फोकस कीजिए। Yes अक्षय? मैं फेस रियलिटी फेस बता दीजिए। कौन सा? फेस रियलिटी सेकंड में। Reality is something that if you are facing some adverse situation, कुछ अगर आप adverse situation देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है आपके कस्टमर कम होते जा रहे हैं, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है तो रियलिटी को फेस कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, बैड सर्विस को हटाइए, गुड क्वालिटी में उसको कन्वर्ट कीजिए, उसके लिए कस्टमर के साथ
बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करना, कस्टमर से फीडबैक लेना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली उस पर ध्यान देना। अगर कुछ रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब इन शॉर्ट सेल्स कम हो रहा है, कस्टमर्स कम हो रहे हैं, तो ये सारी चीजों को, रियलिटी को फेस करके क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए सर्विस का। समझ में आ गया अक्षय? यस मैम। नेक्स्ट, इनोवेशन। यू हैव टू मेक समथिंग इनोवेटिव, नया कुछ लाइए मार्केट में, सर्विस में कुछ बेटर लेकर आइए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो मैंने बताया था वो सब कीजिए, मतलब यू हैव टू बिकम द इनोवेटिव, मतलब इनोवेशन लेकर आइए। सो दीज 4 थिंग्स लाइक we can say like build relationship, innovation, face reality and focus on services. The next question is that what marketing trick should a service provider focus on? यानी कौन-कौन से marketing trick पे focus करना चाहिए किसी service provider को? Preparing a marketing plan, marketing plan बनाइए। Service provider जो है उसके पास एक proper marketing strategy होना चाहिए। Budget allocation यानी कि financial situation, finance को आप किस तरीके से allocate कर रहे हैं अलग-अलग sector पे, जैसे प्रमोशन पे कितना पैसा लगाया, एम्बियंस पे कितना पैसा लगाया, फिजिकल एविडेंस पे कितना लगाया, पीपल को हायरिंग पे कितना लगाया। सो यू हैव टू एलोकेट द बजट एंड ट्राई टू रीच आउट द कस्टमर विद द लो कॉस्ट, यानी कि कस्टमर तक पहुंचना है बट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैन बी लो। तो मार्केटिंग प्लान, एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान रेडी कीजिए। इंपॉर्टेंट डेटा यानी कि हमेशा मेलिंग या फिर मेलिंग लिस्ट वगैरह, कस्टमर के फीडबैक का लिस्ट, ये सब अपडेटेड रखिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री का, पहले का जो भी परचेज हिस्ट्री वगैरह उसको मेंटेन रखिए, ताकि जो इट कैन हेल्प यू इन अट्रैक्टिंग दूस कस्टमर हु आर नॉट कमिंग बैक ऑन देयर ओन। यानी कि कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो 1-2 बार सर्विस लेके आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो यू कैन इजिली, मतलब उनको आप ग्रैब कर सकते हो, उन कस्टमर को इजिली उनकी तरफ फोकस कर सकते हो और उनको ट्राई कर सकते हो फिर से मोटिवेट करके वापस से सर्विस कंज्यूम करने के लिए। So we have to be updated with the important data. We have to prepare with the marketing plan. कस्टमर जो है रिटेन करने की कोशिश कीजिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कहीं ब्रांड स्विच करने का मौका मत दीजिए। लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह करवाइए, एक्स्ट्रा कंसर्न, डायरेक्ट मेलिंग कीजिए, ठीक है। और साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दीजिए। अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उनको एक एडिशनल बेनिफिट्स देने की आदत बनाइए, ताकि उनको ये लगे कि वी आर गेटिंग अ प्रायोरिटी इन दिस सर्विस सेक्टर, राइट। सो यहाँ पर रिटेन करने की कोशिश कीजिए एग्जिस्टिंग कस्टमर को। कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेशन इज द वेरी, बोल सकते हैं वेरी इफेक्टिव वे। आप अपने कस्टमर के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट बना के रखिए। क्लाइंट को नया कुछ भी अपकमिंग प्रोडक्ट अगर आ रहा है, अपकमिंग डिस्काउंट आने वाला है, कोई पर्टिकुलर डेट तक आपको कुछ एक्स्ट्रा 15% लाइक मतलब 50% ऑफर एंड 15% ऑफर फॉर यू, एक्सक्लूसिवली ऑफर फॉर यू। तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देना है कस्टमर को, तो उसके लिए आप हमेशा कम्युनिकेशन बना कर रखिए कस्टमर, ठीक है। ईमेल वगैरह अपडेटेड रखिए। सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट को, सर्विस को प्रमोट कीजिए। ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। स्मार्ट एडवर्टाइजिंग कीजिए, यानी कि व्हेन यू आर एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन द सर्विस, द प्रोडक्ट ऑफर रादर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, मतलब सर्विस पे फोकस कीजिए। देखिए प्रोडक्ट तो सेम टाइप का बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो सर्विस को ना एज ए डिस्टिंक्ट वे हम ले सकते हैं कि प्रोडक्ट चाहे कोई भी कंपनी कुछ भी प्रोवाइड करे, बट वी आर प्रोवाइडिंग दैट डिस्टिंक्ट सर्विस। तो स्मार्ट एडवर्टाइजिंग कीजिए, फोकस ऑन द सर्विस। रिवॉर्ड कीजिए रेगुलर कस्टमर को, ठीक है। फ्री ट्रायल दीजिए, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह जो मैंने बताया था। तो दीज आर द वे फॉर बेसिकली, मतलब मार्केटिंग ट्रिक्स होने चाहिए किसके लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करता है, कंपनी, रिटेलर्स और एनी प्रोफेशनल्स। क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट्स एवरीवन? यस मैम। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे। नाउ वी आर